Okay, so continuing ahead with the human excretory system. In the previous session, we had completed the discussion about the structure of the human excretory system, right? And we also call it as the human urinary system because the major method of excretion in human beings is by urination, right? So excretion, जैसे हमने बोला था, so main point about excretion is that it goes hand in hand with a very important word, that is filtration. The excretion जो होता है, that is associated with filtration. And what is filtered ultimately? जो प्यूरिफाई करता है, मतलब डर्ट. Yeah, that is true. But क्या filter करते हैं यूरिन बनाने के लिए? यूरिक एसिड. नहीं, यूरिक एसिड इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन बींग्स में बहुत कम होता है. ह्यूमन बींग्स में इट इज द यूरिया विच इज द मेजर कंपोनेंट. बट जो यूरिन बनता है, या यूरिन जो बनता है वो किसके फिल्टर होने से बनता है? ये स्ट्रक्चर याद है नेफ्रॉन का? हाँ. We had studied about the kidney. किडनी में से ये कुछ. हाँ, so kidney में what goes into the kidney and what comes back, which is filtered. See this. Blood. Exactly. It is the blood. ठीक है, तो we are going to talk about the process of urine formation. ठीक है, now urine formation जो process है ये पूरी तरह से किडनी में हो रहा है, right? And it is one of the most important processes in life. Correct? It is one of the methods by which the metabolic waste, mainly containing urea, is continuously passed out of the body, continuously accumulated and then periodically passed out of the body, right? So उसके लिए यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझना जरूरी. एंड द मेन पॉइंट भी अब ये याद रखना कि यूरिन फॉर्मेशन takes place when blood is filtered in the body. Approximately in a normal adult human being, we have around 5 liters of blood. Correct? So slight variation between males and females, age factor and all, but approximately it is around 5 liters. तो ये जो 5 लीटर ब्लड है, that is constantly translocated या circulated through the kidneys. एंड देन वो किडनीज क्या करता है कि ब्लड में से मेटाबॉलिकली एट द सल्यूट और द आयोनिक या मोलिकुलर लेवल तक वेस्ट कलेक्शन कंटिन्यूसली करते रहते. एंड द एम ऑफ द किडनीज फॉर डूइंग दिस इज दैट कि देयर शुड बी हार्मफुल मटेरियल्स दैट शुड बी फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी, एनी काइंड ऑफ हार्मफुल सल्यूट्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स उसको निकालते जाना. एंड दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस might have been produced as a byproduct of metabolism, or it could have entered our body through other sources like diet or via your breathing or any such method. Okay, तो इसको constantly निकालते जाना जरूरी है. That is one method. Secondly, because it is the blood which is going into the kidney, so kidneys also have to ensure that all those materials which are useful for the body should not be thrown out. Useful gases, extra amount of water, okay, the nutrients, ये सारे चीजें बॉडी से बाहर नहीं जाना, they are not waste. So that means you can understand evolution में कैसे हुआ है कि the kidneys have understood the process कि good things should be kept back in the body, harmful things should be thrown out of the body. So whatever is collected ultimately for throwing out, that is the urine. And urine is normally in a liquid form. तो उसका मेजर कंपोनेंट है वाटर. ओके, सो ये जो यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी में हो रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इंडिविजुअल फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनीज, जिसको हमने बोला था नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, इन ईच किडनी देयर आर हाउ मेनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट? याद है? हाँ, बहुत.
मिलियंस में है। यस, 1.2 मिलियन 2 मिलियन। नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो बिफोर वी गो टू द प्रोसेस, एक क्विकली हम लोग देख लेते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, सो दैट यू रिकलेक्ट दैट एंड फिर ये प्रोसेस समझने में आसान हो जाएगा, राइट? सो सी दिस, ये जो नेफ्रॉन है, इट ओवरऑल लुक्स लाइक दिस, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमल एंड, जहां से शुरू होता है नेफ्रॉन। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द नेफ्रॉन कंटेन्स व्हाट, समथिंग कॉल्ड द बॉमन्स कैप्सूल। ये नाम याद है? ये जो पोर्शन है, दिस पार्ट जो स्क्वायर के अंदर दिखा है, दैट इज द बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, इस बॉमन्स कैप्सूल में क्या क्या है? सी दिस, इट इज लाइक अ स्मॉल कप, जिसके अंदर देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ से आ रहे हैं? इट इज एंटरिंग द बॉमन्स कैप्सूल वाया एफेरेंट आर्टेरियोल, एंड कैपिलरीज पूरा रीजॉइन होकर बाहर निकलता है इफरेंट आर्टेरियोल। दोनों में स्पेलिंग देखना है, राइट? एंड एफेरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है। एफेरेंट इज लार्जर इन डायमीटर देन इफरेंट। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज हुआ, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज द बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल के दो वॉल्स है, प्रॉक्सिमल वॉल, डिस्टल वॉल। तो यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन पे देखना, देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, वो विसेरल वॉल हो गया यहाँ पर, जहाँ पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। और दूसरा जो वॉल है, दैट इज नोन एज द पैराइटल वॉल। ओके, सो ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, दैट इज नोन एज द कैप्सुलर स्पेस। फिर एक छोटा सा नेक पोर्शन है, ओके, एंड फ्रॉम दैट नेक पोर्शन इट कंटिन्यूज डाउन टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ये देखना, ऐसे करके ये जो प्रॉक्सिमल रीजन है, ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब है नियर द ओपन एंड, कन्वोल्यूटेड मतलब हाईली कॉइल्ड। ठीक है, फिर ये लंबा सा एक ओपन ट्यूब बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब एंड एन असेंडिंग लिम्ब। एक नीचे आ रहा है, फिर एक ऊपर जा रहा है, यू शेप्ड है। फिर उसके बाद एंड में एक और कन्वोल्यूटेड पोर्शन है, विच इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड होता है इनटू समथिंग कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बॉमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होकर कलेक्टिंग डक्ट तक इज वन नेफ्रॉन। इनफैक्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक, बट इट मर्जेस इनटू कलेक्टिंग डक्ट, वो एक नेफ्रॉन हुआ। ठीक है, और ये जो इफेरेंट आर्टेरियल जो बाहर निकल रहा है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, व्हाट डज दैट इफेरेंट आर्टेरियल डू? ये देख, सी द इफेरेंट आर्टेरियल बाहर निकलकर वो कैपिलरीज बन के उसी नेफ्रॉन के आसपास ऐसे कॉइल हो रहे थे, तो उसको बोलते हैं वासा रेक्टा या पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, ये ऐसा अरेंजमेंट है। यू कैन सी द कलेक्टिंग डक्ट ओवर हियर, सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जाते हैं कैलिक्स पोर्शन में, एंड इफ यू सी द एलएस ऑफ द किडनी, देन दिस इज द मेजर कैलिक्स। सारे कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पर अल्टीमेटली जमा, पहले माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स, एंड मेजर कैलिक्स सारे कन्वर्ज होते हैं इनटू रीनल पेल्विस, एंड रीनल पेल्विस कम्स आउट ऑफ द किडनी टू फॉर्म द यूरेटर कैरिंग द यूरिन। तो ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है अंदर। ये रिकलेक्ट हो गया अच्छे से? ठीक है, सो अभी ये टर्म्स समझ में आ गया, बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, एफेरेंट इफेरेंट आर्टेरियोल, राइट? सो बेस्ड ऑन दिस नाउ वी कैन गो टू, हाँ एक और चीज, समथिंग कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, याद है? JGA, ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एफेरेंट आर्टेरियोल का जो वॉल है, it has got smooth muscle cells because they are involuntary. तो वो कुछ सेल्स मिलकर बनते हैं juxtaglomerular cells, okay, and
beginning part of the DCT, that is distal convoluted tubule. That beginning part of DCT जब वो afferent arteriole के साथ एक contact बनाएगा, and it will form a group of cells over here which is more dense than any other region of the DCT. उसको बोलते हैं macula densa. So that macula densa and the juxtaglomerular cells both, दोनों को मिलाकर बोलते हैं juxtaglomerular apparatus. Got it? Okay. So ये दोनों जो cells काम करते हैं, that the importance is in blood pressure regulation within the kidney. That is the reason the name of the lesson is excretion and osmoregulation. So it is not just about collecting waste. It is also about maintaining the osmotic and solute balance and the blood pressure. Imagine वो कितना complicated system है अपने अंदर. अभी समझा यहाँ तक? Okay. So shall we start with the recipe for urine formation? Okay. So now when you talk about urine formation, okay, which for a layman is a very normal process. Periodically the urine is passed out of the body, but उसके अंदर बनने के लिए अपने शरीर क्या क्या मेहनत करते हैं. तो process of urine formation takes place in 3 different steps, one after the other. पहला जो step है, it is called ultrafiltration, also called as glomerular filtration. ठीक है. Second step is called selective reabsorption. And a third one is called tubular secretion, also called augmentation. ये तीनों स्टेप एक के बाद एक पहले देखते हैं. ठीक है. So first thing is ultrafiltration. Now you know the meaning of the word filtration. कि जैसे कोई लिक्विड डाला, some materials are left behind, some others are passed out. उसको filtration बोलते हैं. Across a membrane. But यहाँ पे it is written ultrafiltration. So when you say ultrafiltration, it means the process of filtration under very high pressure. ठीक है. तो यहाँ पर क्या फिल्टर हो रहा है? ब्लड. So blood is filtered under very high pressure in the glomerulus. उसको बोलते हैं ultrafiltration. Okay. So यहाँ पे हो क्या रहा है basically कि afferent arteriole जो ग्लोमेरुलस में एंटर कर रहा है, which is carrying the blood coming from outside the kidney. So as soon as it enters the glomerulus, it is dividing into a network of capillaries. And capillaries का diameter arteriole के diameter से छोटा है. So that means जितना blood afferent में आ रहा है, वो और narrow हो जा रहा है capillaries में. So narrow हो जाने की वजह से the blood which is coming is under high pressure now. So capillaries which is there in the glomerulus, the blood is flowing under high pressure. तो glomerulus में capillaries में blood which is flowing under high pressure उसको बोलते हैं GHP. That is glomerular hydrostatic pressure. So in a normal situation, when a person's GHP is measured in the glomerulus, it will come out to be around 55 millimeter mercury. ये value याद रखो. समझा? Okay. So ये blood का osmotic pressure भी है और उसके साथ साथ capsular pressure भी है. Capsular pressure मतलब Bowman's capsule वाला pressure. दोनों मिलाकर बनता है GHP. Okay. So osmotic pressure मतलब blood is made up of some components. Okay. Water है, plasma है, proteins है, blood cells है, right? Many other dissolved substances are there, solutes are there. तो ये सारे चीजों के वजह से उसे एक osmotic pressure बन जाते हैं. So that is around 30 millimeter mercury. Okay. And capsular pressure का मतलब है जब the glomerulus which is tightly packed inside the capsule, उसके वजह से एक pressure create हो रहा है.
that is called capsular pressure, which is around 15 mm mercury. ओके तो अभी GH पे कितना था 55, ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 30, कैप्सुलर प्रेशर 15, 30 + 15 हुआ 45. तो ये 45 and that is 55, so there is a difference. That difference is known as the net या फिर effective filtration pressure, which is around 10 mm mercury. 55 minus 45 वो यहाँ पे लिखा है. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस माइनस the sum of these two, that is osmotic pressure of the blood and filtrate hydrostatic pressure. So it comes to around 10 mm mercury. तो ग्लोमेरुलस में होने वाला जो फिल्ट्रेशन है that is taking place under a pressure of 10 mm mercury. ठीक है. तो अभी ये प्रेशर कहाँ पे हो रहा है कैपिलरीज में. Now the wall of the capillary is very thin. मस्क्यूलर वॉल है बट इट इज अ वेरी थिन वन. ठीक है. तो जब प्रेशर पूरे 10 mm के साथ उसमें ब्लड आएगा तो वॉल ऑफ द कैपिलरी बिकम्स परमिएबल बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर. तो सम कंपोनेंट्स फ्रॉम द ब्लड कैन गो इनटू द ग्लोमेरुलस अंडर दिस प्रेशर. ओके. सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड they are passed out into the glomerulus from these capillaries. बट इतना प्रेशर नहीं है कि ब्लड सेल्स या प्रोटीन वगैरह निकल. दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. वो नहीं पास आउट हो जाएगा, वो ब्लड में ही रह जाएगा. बाकी जो लिक्विड है छोटे मोटे आयंस एंड सोल्यूट्स है दैट विल गो इनटू द ग्लोमेरुलस. ओके. सो दैट मींस इन शॉर्ट इन दिस कैपिलरीज नाउ major components will pass out into the glomerulus into the Bowman's capsule and macromolecules along with some component will remain in the capillaries. ठीक है. So plasma except the protein will ooze out through the wall of the capillaries. ये हो रहा है हर एक नेफ्रॉन में. Imagine this is happening in 1.2 million nephrons in each kidney. तो per minute पूरा किडनी totally including all the nephrons, see this 600 ml of the blood passes through the kidney per minute. per minute मतलब जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सोच इतना सारा ब्लड पास हो गया. getting it? That is how the kidneys are functioning. and एक की कहां से आ रहा है from the afferent arteriole into the glomerulus. and afferent arteriole में कहां से आ रहा है renal artery outside the kidney. renal artery में कहां से आ रहा है the heart is pumping it. So see the connection between circulatory system and excretory system. यहां तक समझा अच्छे से? Could you imagine that properly? We are still in the glomerulus. आगे जाना है, right? The red colored blood becomes a yellow colored urine, right? So it's a major transformation. Okay. तो यहाँ पर we'll come back to this diagram once again. Okay. तो अभी ग्लोमेरुलस में जो ब्लड पास ऑन हो रहे हैं एंड जो पास होके निकल गया. सी whenever any filtration takes place, okay, we get something called as a filtrate and a residue. फिल्ट्रेट का मतलब है जो लिक्विड निकल गया फिल्टर होके. रेसिड्यू मतलब द सॉलिड सब्सटेंसेस विच रिमेन. सो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेट निकला उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सो इन ऑल द नेफ्रॉन्स टुगेदर per minute the glomerular filtrate that is collected is approximately 125 ml per minute. Approximately, which comes to 180 liters per day. Itna glomerular filtrate. Now imagine, can a person produce urine at the rate of 180 liter per day? Imagine क्या हो जाएगा इंसान का. सूखा बॉम्बिल बन जाएगा.
गेटिंग इट? इतना यूरिन पास आउट कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज जस्ट इन द ग्लोमेरुलस। तो मतलब यहाँ जो प्रोसेस हुआ है, दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट is having major component of the blood, but it is still having a lot of useful components also. इसीलिए नेफ्रॉन में इसी स्टेज में यूरिन फॉर्मेशन खत्म नहीं होता। अब ये जो बेसिक फिल्ट्रेशन हो गया, अब इसमें से फिर और फिल्ट्रेशन कंटिन्यू करना है। गेटिंग इट? सो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, which is also known as deproteinized plasma, which is also called as primary urine. This is alkaline in nature because of the solutes. इसमें यूरिया है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, पिगमेंट्स है, आयंस है। So now you can understand यहाँ पे amino acids, glucose, ions, they are important components. It cannot be passed out as a urine. Okay. So अब क्या हो रहा है? Recollect this diagram. We have seen the Malpighian pupil. अब ये glomerulus था, I mean है, right? यहाँ से फिल्टर होके आया, एंड ये जो बॉमन्स कैप्सूल का वॉल है, विसेरल एंड पैराइटल वॉल, that filtrate which is collected passes through these walls and it comes to the this one capsular space. यहाँ पर glomerular filtrate यहाँ पे collect हो गया, ठीक है। और जहां से PCT start हो रहा है, you can see there is microvillus present. तो ये माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां से पास आउट होके निकलेगा, इट विल बी subjected to absorption. That is the next step. Okay, it passes through the filtration slit into capsular space and then continues to the PCT. तो यहाँ PCT माइक्रो कैप्सुलर स्पेस में जो पहुंच गया, till that is the first step of urine formation, that is ultrafiltration. Did you understand ultrafiltration properly? Sure. Okay, तो ये डायग्राम में देखना, ये ग्लोमेरुलस है, ये कैप्सुलर स्पेस है। Okay, so major component of the blood coming via afferent arteriole is now into this, which is called glomerular filtrate, also called primary urine या deproteinized plasma. ये तीनों अलग अलग वर्ड्स याद रखना, ठीक है। It has been collected over here. But at the same time ये भी याद रखना कि that part of the blood which was not filtered is now passing back via efferent arteriole, and वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन के उसी नेफ्रॉन के आसपास कॉइल कर रहे हैं। तो something is going to happen even there, and that's why now we should understand the second step of urine formation, which is another very important step, and that is called selective reabsorption. Okay, re मतलब again, and you know the meaning of absorption, कि उसको ले लिया, मॉलिक्यूल सॉल्यूट जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सिलेक्टिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर। नाउ इन अ पर्सन, इन एनी गिवन सिचुएशन, ओके, द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज ऑलवेज गोइंग टू वेरी विथ एनी अदर पर्सन। हर बार यूरिन एक जैसा रहेगा ये जरूरी नहीं है। विंटर सीजन आया, समर सीजन आया, okay, whatever is the lifestyle which is going on, whatever is the amount of fluids that a person is intaking, किस तरह का डाइट खा रहे हैं, whether the person is taking any other medicines or not, okay, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली ब्लड का कंपोजिशन क्या है, जिस वजह से क्या चीजें बॉडी में रखना है, क्या चीजें वापस निकाल देना। तो दैट इज व्हाई द वर्ड इज सिलेक्टिव, कि according to the requirement at that given point of time the selection is done, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, and that is the thing which is carried out in the PCT, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब जो PCT से पास ऑन हो रहा है वो वहां से काफी स्लो से पास हो रहा है, एंड इसीलिए इट इज हाईली कॉइल्ड, सीधा ट्यूब नहीं है। ओके, इमेजिन यू गो टू अ वाटर पार्क, जो वहां राइड्स में बैठती हो,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइड्स, एक है जिसमें ऊपर बैठा हो सीधा नीचे आ गया, दूसरा है जो ऐसा ऐसा घूम फिर के देन नीचे आता है। तो जिसमें घूम फिर के आता है उसमें टाइम लगता है ना, सीधा आ गया तो फटक से खत्म हो गया। गॉट इट? तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, फटक से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास ऑन नहीं होना है, otherwise there is a possibility useful components will be passed out before it is absorbed। इसलिए नेचर ने इस पार्ट को कॉइल करके रखा हुआ है कि आराम से जाओ, so that we have time to decide कि ये चीज वापस रखना, ये चीज बाहर भेजना। इमेजिन द प्लानिंग। गॉट इट? तो वो माइक्रोबिलाई वगैरह दिया हुआ है जिसके वजह से एब्जॉर्प्टिव एरिया का इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इज इफेक्टिव प्रोसेस। इस प्रोसेस को इफेक्टिव रखना ही है। ओके, so there are two ways in which these cells do the absorption. One is by active process, that means where energy is spent and ATP energy is used, and another way by a passive process where simple diffusion takes place without spending energy। ठीक है, ऐसा इमेजिन कर, एक्टिव एंड पैसिव का डिफरेंस समझ रहा हूँ तो कि सपोज लाइक यू आर एट द रेलवे स्टेशन, you are at the ground level and you have to climb the bridge। So two ways in which you can do, you can climb the staircase and reach up where you are spending your energy to climb, so वो active process। okay, another method, you step on an escalator, escalator will take you up, so you don't have to spend any energy, but in both the cases the same work is done, you are reaching the top of the bridge। यहाँ पर भी ऐसी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक साइड में कोई मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स है जिसको दूसरे साइड पे आना है, तो either it will come passively via diffusion without spending any energy, or it has to be spent, the energy has to be spent and the molecule has to be pushed to the other side। so depending upon the requirement it takes place। okay, so abhi there are some materials which are very important and cannot be passed out in the urine, highly significant molecules जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन में निकल के आ गया बट इसके आगे उसको नहीं जानते। These kind of materials are called high threshold substances। so you have glucose, amino acids, vitamin C, different types of ions। okay, so considering a normal healthy person first of all, तो ऐसे पर्सन में these materials are immediately absorbed actively। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे मेहनत करके इनको वापस शरीर में रखना, जाने नहीं देना। Got it? Okay, and there are some other substances which are important but not so very important, कि थोड़ा एक्स्ट्रा अगर निकल गया तो that's fine up to some level, उसको बोलते हैं low threshold substances। so you have water, sulfates, nitrates and all, तो उनको रीअब्सॉर्ब करते हैं बट उसके पीछे एनर्जी नहीं लगाते, बाय डिफ्यूजन इट विल बिकम। तो मतलब नाउ ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इट इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन बिकॉज फिल्ट्रेट से निकल गया बट यहाँ पे वापस एब्सॉर्ब कर रहा है। सो द हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस एंड द लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस बोथ in active and passive way both, they are reabsorbed and put back into the PCT and DCT। okay, they are reabsorbed and put back into the body, वो आगे यूरिन में नहीं जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है पीसीटी एंड डीसीटी में ही जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया था उसका 99% वापस शरीर में जा रहा है। 99%, मतलब 180 लीटर पर डे था जिसका 99% फिर से शरीर में आ गया। Getting it? So you can understand selective reabsorption is so effective। ठीक है, समझा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मीनिंग एंड प्रोसेस? ठीक है, ओके। देन कमिंग टू द थर्ड स्टेप, ओके, पीसीटी डीसीटी हो गया। ओके, सो थर्ड स्टेप होगा टिब्यूलर सेक्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड ऑगमेंटेशन।
कि रीएब्जॉर्प्शन करते करते फाइनली दैट फिल्ट्रेट विल रीच द डीसीटी वाया पासिंग थ्रू दैट लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले का भी अलग से रोल है, वी विल सी दैट। ठीक है, सो टुवर्ड्स दिस साइड नाउ the efferent arteriole which has come out from the glomerulus, now that is also forming a highly coiled structure around the DCT, right? So DCT और collecting tubule ये दोनों क्या करेंगे? They will actively absorb waste matter like creatinine. creatinine करके एक important waste matter है जो उसको absorb करेगा, and this creatinine is coming into from the peritubular capillaries, वहां से absorb करेगा, and along with that ions like K plus H plus also. That means there is a possibility, it's like a double checking which is done, कि efferent arteriole में भी there is a possibility कुछ important material चला जाए या कुछ वेस्ट मैटर जा रहा है जो फिर से शरीर में जा रहा है, तो उसको पकड़ो यूरिन के लिए डाल दो, कि मतलब चोर को भागने देना ही नहीं। ऐसा पुलिस जब भी चोरों का अड्डे को घेर के खड़े रहते हैं तो चारों तरफ से सराउंड करते हैं ना, कि एक साइड से अटैक किया तो चोर पीछे के रास्ते से नहीं भागना चाहिए, वहां भी पुलिस वाले खड़े। तो इट इज द सेम सिचुएशन ओवर हियर, कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन से अगर बच के निकल गया तो यू हैव द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड द डीसीटी, कि यहां से तो बच के निकल गए, अब कहाँ जाओगे? गेटिंग इट? ऐसा एग्जाम में आंसर में मत लिख, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो डीसीटी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में this waste creatinine and important ions are also absorbed and put into the DCT and collecting tubule. So that is why by the time this filtrate has reached the collecting tubule, उसका concentration और बढ़ा दिया, और चीजें ऐड हो गया ना, and by the time the urine reaches here, the pH of the urine changes from alkaline to acidic. Okay, and उसमें भी especially important होता है H plus ions. Okay, because H plus के वजह से ही acidity and alkalinity determine होता है ना। In chemistry you must have learnt about Arrhenius theory of acids and bases. पढ़ा है? Arrhenius, नाम रिपीट करो वापस। Arrhenius theory, ARRHENIUS। नहीं हुआ? एसिड्स एंड बेसिस करके कोई टॉपिक है केमिस्ट्री में? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ है, मतलब आता है लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा, ऐसा डीप में कोई टॉपिक नहीं है उसके रिलेटेड। ओके, तो सिंपली उसका मीनिंग क्या है पता है, कि व्हेनेवर एरेनियस थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ कि एनी मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एन एसिड व्हेन इट डिसोशिएट्स एंड प्रोड्यूसेस H plus ions। जैसे अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो डिसोशिएट करेगा तो यू गेट H plus एंड Cl minus, इसलिए वो एसिड। ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, so you get SO4 minus 2, that is sulfate, and H plus. Similarly, any molecule when it dissociates and you get OH minus, that is hydroxyl, तो उसको बोलते हैं बेस। तो H plus हो तो एसिड, OH minus हो तो बेस, तो you have NaOH, MgOH twice. Got it? तो यहाँ पर देखना DCT and CT में क्या हो रहा है, H plus आयंस का सिक्रीशन हो रहा है फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड ये H plus के वजह से ब्लड का होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म चल रहा है, कि ब्लड pH इज मेंटेन्ड, इट डजंट बिकम टू अल्कलाइन, डजंट बिकम टू एसिडिक, एंड वो कितना H plus को सिक्रीट करना है, दैट इज डिटरमाइंड ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाटएवर इज द pH ऑफ द ब्लड। कि सपोज यू मस्ट हैव ईटन समथिंग जिसके वजह से ब्लड pH बहुत बढ़ गया या रिड्यूस हो गया, या कोई दवाई चल रहा है, pH बदलते हैं हर सिचुएशन में, तो उस वक्त की जरूरत के हिसाब से दैट मच अमाउंट ऑफ H plus ions आर secreted and blood pH is regulated, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन और ऑगमेंटेशन।
इनफैक्ट मरीन बोनी फिशेस, डेजर्ट एम्फीबियंस में ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इज द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन, बिकॉज उनके लिए पीएच ऑस्मोटिक रेगुलेशन बहुत जरूरी है, पानी बहुत कम है ना। ओके, सो ऐसे करके डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फाइनली जो लिक्विड आ रहा है दैट इज द यूरिन। समझा अच्छे से? ओके, इन बिटवीन वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वाज योर लूप ऑफ हेनले, जो पीसीटी के बाद था। पीसीटी में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, अब लूप ऑफ हेनले क्या कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। See, ultimately urine is a mode of excretion in human beings, that is correct. Okay, but it is also one of the methods by which water is lost from the body. So we call it dehydration. And dehydration in human beings is not only through urine. There are other methods by which we lose water from the body continuously. Sweating hota hai, correct? We are losing water in the form of tears from the eyes. We speak a lot, so there are water droplets given out. That is the one loss from the body, correct? और दूसरा क्या तरीका है अपने शरीर से पानी लूज करने का? Even fecal matter contains water to some extent. You're exhaling out, the air also contains a little bit of moisture. ये सारे तरीके हैं by which we are losing water. So that is why at every given situation the body has to keep a check, depending upon the climatic condition, depending upon the physical work done by the person, depending upon other modes of water loss from the body, the concentration of urine has to be decided. Okay, so that's why जो glomerular filtrate और PCT से pass on हो गया blood, that filtrate is concentrated to almost 4 times. Okay, that is 1200 milliosmol per liter as compared to the blood. कि blood का 300 milliosmoles per liter है, and यहाँ पर जो concentration हो रहा है इसका that is around 1200. एंड ये कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए किडनीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट. नाउ व्हाट इज दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म व्हिच टेक्स प्लेस इन द लूप ऑफ हेनले? ओके, सो जैसे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, दिस इज द ग्लोमेरुलस, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले. ओके, सो लूप ऑफ हेनले में ध्यान से देखना, इट इज द कॉन्सेंट्रेशंस आर रिटन ओवर हियर. ये जो कनेक्टिंग थिंग है बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स, उसको वासा रेक्टा बोलते हैं. ओके, सो पीसीटी से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद इन एट एवरी स्टेज इन द पीसीटी फॉलोड बाय लूप ऑफ हेनले, सी द लेवल ऑफ द वाटर, व्हाट इज हैपनिंग. रेड का मतलब है लेस कॉन्सेंट्रेट, ब्लू का मतलब है मोर कॉन्सेंट्रेट. तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसका डायमीटर कम है एज कंपेयर टू द असेंडिंग लिम्ब. ओके, सो सी द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीएब्सॉर्ब्ड. लूप ऑफ हेनले का मेजर रोल है वाटर को रीएब्सॉर्ब करने का. वाटर को रीएब्सॉर्ब करने की वजह से यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड एंड द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट ऑल्सो रिड्यूसेस. ये एरो मार्क्स देखना, वाटर इज बीइंग गिवन आउट, वाटर इज टेकन इन. गॉट इट? तो यहाँ पर आते आते अल्टीमेटली व्हेन इट रीचेस द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट, तो पानी को या तो रीएब्सॉर्ब कर रहा है या तो छोड़ दे रहा है. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. एंड इसको काउंटर करंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड देयर इज एन असेंडिंग लिम्ब. So the water current is different, एक towards gravity, एक against gravity. तो एक जगह absorb होगा, dilute हो जाएगा, concentrate हो जाएगा, दूसरी जगह reabsorb हो जाएगा, dilute हो जाएगा. That is concentrated. Understood this? ठीक है.
अच्छी तरह समझा कैसे हो रहा है? ओके। एंड एक और यहाँ पर हार्मोन का रोल आता है विच इज कॉल्ड ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, which is secreted from the pituitary gland. Okay, anti-diuretic hormone, which is also known as vasopressin. In 12th standard, you will learn about this in control and coordination, endocrine system में. ठीक है? So ये hormone क्या कर रहा है? इसका नाम है anti-diuretic. Anti मतलब against. Diuretic मतलब dilute urine. मतलब दिस हार्मोन इज एक्टिंग अगेंस्ट डाइल्यूट यूरिन, मतलब ये हार्मोन चाहता है कि यूरिन डाइल्यूट ना हो, कॉन्सेंट्रेटेड. यूरिन डाइल्यूट कब होगा? व्हेन द यूरिन विल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. तो एडीएच क्या करेगा? वासा रेक्टा को और लूप ऑफ हेनले को स्टिमुलेट करेगा कि रीएब्सॉर्ब द वाटर बैक एंड गिव इट बैक टू द बॉडी, मेक द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, तो एडीएच क्या करते हैं? वॉल ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स will become permeable to water because of ADH. तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट के पोर्शन में देखो, यू कैन सी वाटर बीइंग गिवन आउट, रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, सो दैट मेक्स द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, एंड इसी तरह से यूरिया वगैरह जो भी मटेरियल्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट, दैट विल बी रीएब्सॉर्ब्ड. ट्यूब्यूलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड will keep on changing their concentrations. Okay, and यूरिया को यहाँ से ट्यूब्यूलर फ्लूइड से निकालकर टिश्यू फ्लूइड में डालेगा, टिश्यू फ्लूइड से रीअब्सॉर्ब होकर फिर से ट्यूब्यूल में जाएगा, उसको बोलते हैं यूरिया रिसाइक्लिंग. ओके, सो यूरिया रिसाइक्लिंग की वजह से व्हाट इज हैपनिंग इज more and more water reabsorption from tubular fluid takes place and small volumes of concentrated urine is given out. Approximately in a normal condition for an adult human being, okay, after how much time generally urine needs to be passed out from the body? Two, 3 hours. Yes, once in every 2-3 hours in a normal situation, right? So you can imagine once in every 2-3 hours अगर urine pass out होना है, okay, so that much amount of urine has to be produced, and that is regulated and maintained because of these two steps, एक selective reabsorption और एक tubular secretion. अगर ये इससे ज्यादा फास्ट हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, तो the frequency of urine passing out, maturation will increase. So say imagine a situation where suppose the urine will need to be passed out every half an hour or every 1 hour. It will make a person dehydrated, no? Social problems होगा वो अलग, okay, but a person will dehydrate, so that needs to be avoided. Okay, so osmotic gradient जरूरी है renal medulla में, okay, so that this balance is maintained and counter current multiplier system करके present है यहाँ पर. ठीक है, so the blood which is entering the descending limb, it has around 300 milli-osmolarity of blood per liter. Okay, but जैसे जैसे reabsorption होता जाएगा and it passes through the vasa recta and the ascending limb, it is again becoming more concentrated. तो ये just समझ के रीड करना है कि ions and molecules and the water and the urea ट्यूबुलर फ्लूइड से निकला, टिश्यू फ्लूइड में गया, टिश्यू फ्लूइड से एब्जॉर्ब हुआ, ट्यूबुलर फ्लूइड में गया. ये 2-3 बार होता है. तो काउंटर करंट इज मल्टीप्लाइड 2 times so that the concentration is reached and ये osmotic gradient maintained. अच्छी तरह समझा? Okay, so that's why ये एक important example है देखना, in animals like camels, which are called as the ship of the desert. Okay, तो ऐसे एनिमल्स में
loop of Henle is comparatively longer as compared to other mammals. because loop of Henle अगर उतना लंबा रहेगा तो काउंटर करंट ज्यादा टाइम चलेगा, रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा टाइम पड़ेगा. And that's why the urine excreted by camel is a concentrated one, because they live in the desert. Maximum water has to store in the body. तो यहाँ पर वो मेंटेन होता है. Okay, did you understand the steps, all the process अच्छे से? Any doubt in urine formation? See this. ये सबका diameters दिया देखो. Okay, thin limb of the descending one, thick limb of the ascending one. उसका diameter देखो. See the wall thickness also. Right? Similarly, efferent arteriole, afferent arteriole. Okay, you can see the DCT, collecting duct, ये papillary ducts. सबका diameter में और wall thickness में different दिखता है. So that is the one which determines what type of reabsorption takes place and how the urine becomes concentrated. ठीक है? And that is the reason you can understand कि ultimately then what is given out in the urine tells a lot about the inner metabolic status of a person. ठीक है ना? इसलिए कभी कभी डॉक्टर्स किसी बीमारी के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि यूरिन टेस्ट करवा लो करके. Right? Especially the morning sample of the urine has to be given for that, because maximum metabolic activity is taking place during the whole night when there is a larger fasting period. तो उसमें जो भी निकल के आएगा उससे अंदाजा मिलेगा कि क्या है. Right? So what is the normal composition of the urine? Normal urine का color है pale yellow, but sometimes it is almost watery, hardly any yellowish, and sometimes it is very dark yellow. So there is a lot of difference between that. Winter summer के बीच में difference हो जाएगा, because in the winter season we normally don't sweat, right? So the major way in which water is lost from the body is by urine. So it becomes more dilute and the yellow color becomes less. But in the summer season, urine is dark yellow in color because we are also losing water by sweating. तो यूरिन में से पानी रीएब्सॉर्ब हो रहा है, तो कलर देखकर ही पता चल जाता है. And besides that, other factors also, the food which is consumed, the fluids which are taken, correct? So ADH, say water reabsorption, and there is something called RAAS, where the electrolyte reabsorption takes place. ये दोनों के वजह से यूरिन का concentration and color वगैरह determine होते हैं. Okay, now you will learn about the human nervous system and the brain in 12th standard. तो एक पार्ट याद रखना है कि ब्रेन में in the mid brain, brain is divided into 3 portions called forebrain, midbrain, hindbrain. ठीक है? So mid brain में there is a region called hypothalamus, and hypothalamus is a connecting region between nervous system and endocrine system. Okay, it is a part of the brain ultimately. So hypothalamus control करता है pituitary gland को, and pituitary gland in turn controls all the other endocrine glands of the body. ठीक है? So this hypothalamus, it has got special receptors, nerve endings, जिनको बोलते हैं osmoreceptors. तो ब्लड में कभी भी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी जब बदलेगा, सोल्यूट ज्यादा हुआ, कम हुआ, जब जैसे ही वो बदलते हैं, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स इमीडिएटली डिटेक्ट करेगा, and it will tell the hypothalamus that the osmolarity of the blood is either decreasing too much or increasing too much. Okay, so suppose like you have lot of salty food, जैसे नमकीन वगैरह खा लिया, मूवी देखते देखते बैठ के चिप्स खा लिए बहुत सारे, पानी कम पिया, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में. ओके, तो ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ेगा उस वजह से, या स्वेटिंग ज्यादा हो गया, वाटर लॉस हो गया, तो कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो हाइपोथैलेमस विल बी एक्टिवेटेड. तो हाइपोथैलेमस इमीडिएटली बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि
the body fluid, the blood is having less water, immediately release antidiuretic hormone. That antidiuretic hormone should go to the DCT, stimulate the collecting duct to reabsorb water, whatever is passing out in the urine, and put it out in the body. It's like a feedback mechanism. It's like if you are doing your studies well, your teacher need not tell you कि बेटा पढ़ाई कर. But if you don't do your work on time, the teacher has to keep on telling. ये भी ऐसे ही काम करता है कि ADH अगर अपना काम बराबर से करेगा तो हाइपोथैलेमस को बोलने की जरूरत नहीं. But suppose if your teacher is telling you constantly, still you are not studying, so then the next higher authority is what? Principal. Getting it? तो यहाँ पर भी ऐसे ही है. ADH, pituitary, hypothalamus. जो काम ठीक से करेगा नहीं उसका हायर अथॉरिटी उसको सीधा करेगा. Getting it? Now suppose there is a situation where you have taken too much amount of body fluids. फ्रूट्स वगैरह बहुत खा लिया, फ्रूट जूस पी लिए, पानी भी पी लिया, नमकीन वगैरह बहुत कम खाए, स्वेटिंग ज्यादा नहीं हुआ, तो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर लेवल इन योर बॉडी. सो द किडनीज डोंट रिक्वायर टू रीअब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द यूरिन. थोड़ा एक्स्ट्रा पानी अगर जा रहा है तो जाने दो. सो दैट ऑल्सो अगेन वर्क्स इन द सेम वे. ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है, दे विल गेट अ मैसेज कि ब्लड concentration is very less. So it will tell the hypothalamus to tell the pituitary to secrete the not secrete the ADH, because water reabsorption can be taken care of. Imagine the chain reaction. Getting it? तो जब water reabsorption कम होगा, water secretion will be more, तो urine volume will also change accordingly. तो एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक. Did you understand how it works? Okay. Now, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि से एन इंजुरी और एन एक्सीडेंट जहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया. ओके, लाइक हैमरेज बोलते हैं उसको. तो ब्लीडिंग हो गया तो क्या होता है कि पूरा ब्लड का ही लॉस हो रहा है. तो बॉडी में ब्लड ही कम है, मतलब इट इज टेकन एज व्हाट? concentration of the blood is high. So in that situation also ADH secretion is stimulated. अगर पिट्यूटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया और ADH का हार्मोन प्रोडक्शन ही बराबर से नहीं हो रहा है या ADH ही नहीं बन रहा है, then diuresis will be promoted and large amount of dilute urine will be produced continuously. So absence of ADH या deficiency of ADH leads to a condition, a disorder in a person जिसको बोलते हैं diabetes insipidus. This is also called as water diabetes. The other diabetes that we know जिसका ग्लूकोज से कनेक्टेड है वो अलग है. That is diabetes mellitus. Okay, उसमें ब्लड उसमें इंसुलिन से रिलेटेड है वो. This diabetes is different. ये diabetes insipidus where ADH is absent या very negligibly produced, because of which the dilute urine is produced. And diabetes insipidus का 3 symptoms है. Polyuria, excessive urination. Okay, excessive and very frequent urination. Polydipsia, कि बार बार यूरिन जा रहा है इस वजह से excessive thirst. And polyphagia, कि ये urination and thirst के वजह से lot of energy is lost. तो polydipsia मतलब polyphagia मतलब excessive hunger. ये diabetes insipidus में होता है. तो people suffering from diabetes insipidus have to face a lot of trouble. कि स्पेशली ट्रैवलिंग वगैरह के टाइम पे उनको बहुत सोचना पड़ता है कि बार बार जाना पड़ेगा तो फैसिलिटीज है कि नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, राइट? दैट इज द कंडीशन. तो ये एडीएच के डेफिशिएंसी की वजह से. ओके, अंडरस्टूड हाउ द यूरिन कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय ऑल दिस, राइट? सो अब यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया, देखना कि कभी अगर किसी पर्सन का ब्लड रिपोर्ट यूरिन टेस्ट करवाते
तो उसका जो रिपोर्ट बन के आता है पैथोलॉजी लैब से, तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली शोन इन द रिपोर्ट, कि पहले तो पेशेंट का बेसिक डिटेल्स वगैरह होगा, द एज, द जेंडर, एवरीथिंग, ओके, एंड देन द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द यूरिन, कि यूरिन का कलर, उसका अपीयरेंस, समटाइम्स इट कैन बी लाइक अ टर्बिड, ओके, या क्लियर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कुछ डिपॉजिट्स मिलता है कि नहीं, देन दे विल डू ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल टेस्ट, ओके, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका डेंसिटी से कनेक्टेड, ओके, या एनी अदर एबनॉर्मलिटीज दैट कैन बी फाउंड इन द यूरिन, ठीक है। देन एक और चीज है यहाँ पर कि सपोज नाउ, ओके, ठीक है, एक और रेगुलेटरी मैकेनिज्म है यूरिन से रिलेटेड, विच इज कॉल्ड RAAS, विच मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम इज टेकन केयर ऑफ बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में लास्ट पार्ट ये बताया था, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, DCT and some smooth wall cells of the afferent arteriole। तो ये क्या कर रहा है कि afferent arteriole में whenever in any situation the amount of blood supply decreases। See, in a normal situation ये सबका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? Afferent arteriole से, because that is where the renal artery has to supply the blood which is then ultimately filtered via these processes। बट अगर afferent arteriole में ही डिक्रीज हो गया कि बॉडी में ही ब्लड कम है, या द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर या डिहाइड्रेशन, तो एफेरेंट में ही अगर कम आ गया तो दिस juxtaglomerular cells they will release something called renin, okay, renin enzyme। what will this renin do? ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1। renin will become a catalyst for this conversion, and angiotensinogen, whenever the name of an enzyme ends with ogen, it means it is an inactive form। you remember human nutrition में हमने digestion का reactions देखा था, trypsinogen, chymotrypsinogen, वैसे so what will the renin do? It will convert angiotensinogen to angiotensin 1। ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये प्रोड्यूस होता है लिवर में हेपेटोसाइट्स में, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 बन गया, तो एंजियोटेंसिन 1 हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 which is an active form of this hormone, and angiotensin 1 to angiotensin 2 ये कन्वर्जन होता है by another enzyme which is called angiotensin converting enzyme। so two reactions are going on over here। first one, juxtaglomerular cells will secrete what? Renin। renin will convert angiotensinogen to angiotensin 1 in the liver, okay। then angiotensin converting enzyme will further change the angiotensin 1 to angiotensin 2 which is the active form, और ये हार्मोन आगे काम करेगा फिर। और ये सब कुछ किस सिचुएशन में हो रहा है? when the afferent arteriole itself is giving less amount of blood as compared to the normal। तो लो बीपी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो ऐसा हो सकता है। अगर नॉर्मल ब्लड दे रहा है एफरेंट आर्टेरियोल तो ऑल दिस नीड नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 बन गया। नाउ इट हैज गॉट 3 फंक्शंस। सबसे पहले क्या करेगा वो? आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल जो किडनी को जा रहा है उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, उसका डायमीटर कम करेगा, बिकॉज एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड विच इज कमिंग इज लेस, तो उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, दैट इज नीडेड। समझ रहे अच्छे से?
ओके, सेकेंडली ये स्टिमुलेट करेगा पीसीटी के सेल्स को टू रीएब्सॉर्ब सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फ्रॉम द filtrate that is passing. Okay, and it will also stimulate the cortex of the adrenal gland. एड्रीनल ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ट्रायंगुलर ग्लैंड है, याद है, 2 समोसे रखे थे। ओके, तो एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन, and aldosterone in turn will stimulate the DCT and collecting duct to reabsorb water and sodium ions. तो जो पर्सन में ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन था, ब्लड प्रेशर कम था, बिकॉज ऑफ दिस एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। गॉट इट? कैसे पूरा चेन रिएक्शन बना कि पर्सन इज हैविंग लो बीपी, because of which renal artery supplying less blood, afferent arteriole having less blood, juxtaglomerular cells stimulated, they produce what? Renin. Renin will convert angiotensinogen to angiotensin 1 in the liver. Angiotensin converting enzyme will further modify angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 is an active form of the hormone, which will produce 3 more effects. First, it will constrict or reduce the diameter of the arteriole in the kidney, तो blood flow reduce हो जाएगा, blood pressure बढ़ जाएगा. Secondly, PCT के cells को stimulate करेगा to enhance the reabsorption of the sodium chloride and water. Okay, and thirdly, it will stimulate the cortex of the adrenal gland and stimulate it to produce another hormone called aldosterone, which in turn will stimulate the DCT and collecting ducts so that it will reabsorb more sodium and water. Finally, blood volume and the pressure will increase. तो कितना अच्छा से देखना, ये पूरा ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा है किडनीज. So that is the reason we have this juxtaglomerular apparatus. Okay, and that is why ADH जो एक अलग से कर रहा है वो एक है. Okay, only ADH can lower the blood sodium concentration by water reabsorption, while RAAS will stimulate sodium reabsorption, so osmolarity of the body fluid can be maintained. And ADH and RAAS दोनों के वजह से increase in the blood volume and osmolarity takes place. Okay, so when blood volume and the blood pressure increases, अभी अगर ये सपोज ऐसा हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, बट ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो भी प्रॉब्लम है, उसको बैलेंस में रखना जरूरी है. लो है तो हाई पे लाना है, बट नॉट टू हाई. So when the blood pressure and the volume increases, the wall of the atrium will be stimulated to produce something called atrial natriuretic peptide, ANP. तो ये वापस उल्टा फंक्शन करेगा. ANP क्या करेगा? It will inhibit sodium and chloride reabsorption from the collecting ducts, जिस वजह से रेनिन का ही रिलीज कम हो जाएगा एंड फर्दर एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सबका रिलीज कम हो जाएगा. कि मतलब एक काइंड ऑफ अ मैसेज पहुंचाएगा कि जितना प्रेशर इंक्रीज करना था कर चुके हैं, अब शांत हो जाओ. तो फॉर दैट ANP इज नेसेसरी, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड. तो क्या कर, रेनिन का ही सिक्रीशन रिलीज रिडक्शन कर दिया तो एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सबका सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर विल बी मेंटेन्ड एट दैट लेवल. उस कंडीशन को बोलते हैं नेट्रियूरेसिस. नेट्रियम इज सोडियम ना, तो सोडियम आयंस आर रिलीज्ड इन द यूरिन. समझा पूरा मैकेनिज्म अच्छे से, राइट? हाउ ब्यूटीफुली डिजाइंड बाय द नेचर, है कि नहीं? कि मतलब सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स, बस इसी का पूरा आगे पीछे इवोल्यूशन में कैसे डेवलप हुआ सब.
correct? And kidneys on the other side also participate in synthesis of something called calcitriol, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है. सो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर कैल्शियम रहेगा, okay, so calcium from the diet should be reabsorbed and given to the body. So deficiency of this calcitriol can lead to brittle bones. वो नहीं होना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट है. ठीक है. सो कैसा लगा किडनीज? अच्छा था बट बहुत ऐसे जमल है ना. But imagine it's such a process which is happening for everybody in the daily life, and उसके पीछे कितना तामझाम है देखना. करेक्ट. ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया देखना. साउथ अमेरिका का वैम्पायर बैट एक नॉक्टर्नल एनिमल है, दैट मींस एक्टिव एट नाइट, एंड इट इज सैंग्विवोरस. सैंग्विवोरस का मतलब है विच फीड्स ऑन ब्लड, डायरेक्टली ब्लड पीता है. तो दूसरे बर्ड्स और मैमल्स के ब्लड को फ्री करते हैं. ठीक है. एंड इट कैन फ्लाई टू लॉन्ग डिस्टेंसेस टू जस्ट लोकेट अ सूटेबल प्रे, इसलिए उसका नाम दिया वैम्पायर बैट. वैम्पायर्स खून चूसते हैं ना. ओके. एंड कभी अगर पकड़ लिया तो इट कैन इवन कंज्यूम ब्लड टू एन एक्सटेंट ऑफ मोर देन हाफ इट्स बॉडी मास. कि अगर वो खुद 2 किलो का रहेगा तो 1 किलो से ज्यादा ब्लड खुद के अंदर डाल सकता है. एंड देन इन दैट केस द बॉडी ऑफ द बैट बिकम्स टू हैवी टू फ्लाई. ओके. सो ऐसे टाइम पे वो क्या करेगा टू कंपेंसेट, जब वो बैट फीड कर रहे हैं, दैट टाइम इट्स किडनीज विल एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन. मतलब एक साइड से बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन निकाल देगा तो वो उतना सारा ब्लड अंदर ले सकता है. एंड देन इट विल बी एबल टू फ्लाई टू द नियरेस्ट केव या ट्री जब वो रह जाता है. एंड डे टाइम में एक्टिव नहीं है, इट इज अ नॉक्टर्नल वन, तो पानी पीने के लिए कहीं जा नहीं सकते. एंड इट इज फीडिंग अल्टीमेटली ऑन ब्लड, एंड ब्लड इज हैविंग लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन इट. तो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट विल ऑल्सो कंटेन टू मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. सो ऐसे टाइम पे उसका किडनीज क्या कर रहे हैं, वेस्ट को डाइल्यूट करने के बजाय द किडनीज विल कॉन्सेंट्रेट द यूरिन इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर. तो डे एंड नाइट टाइम का डिफरेंस है. एंड नाइट टाइम जब वो इतना सारा फीड कर रहे हैं तो नाइट्रोजनस मटेरियल अंदर डाल रहे हैं, तो कैसे बैलेंस करना है. दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन. दिस इज द वैम्पायर बैट. ओके. अच्छी तरह समझा प्रॉपरली. ठीक है. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द यूरिन, ठीक है, व्हाट आर द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिन. यूरिन के नॉर्मल कंपोनेंट्स क्या है वो जानना जरूरी है. we'll just finish with the urine part and then we can stop for today. ठीक है. सी यूरिन में नॉर्मली क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इट इज सेड कि इन इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन एक 24 आवर्स में approximately 1 to 2 liters of urine being passed out is normal. ठीक है. एट अ टाइम 2 लीटर यूरिन तो नहीं जाते. Getting it's not like a drum or something. You remember the urinary bladder and its capacity, right? So up to 350 ml, 500 ml, 700 ml or something. तो पूरे दिन में नॉर्मली 2 लीटर तक ठीक है, नॉर्मल है. ठीक है. एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन मेनी अदर फैक्टर्स. कलर इज बिकॉज जनरली पेल येलो, एंड द नेम ऑफ द पिगमेंट बिकॉज ऑफ विच द यूरिन इज पेल येलो, उसको बोलते हैं यूरोक्रोम. ये नाम याद रखना है. Okay, it is the urochrome pigment because of which the color of urine is pale yellow. ठीक है. And urochrome जो pigment है that is produced in the person by the breakdown of the bile. Okay, and bile कैसे बनते हैं? By the breakdown of RBCs in the liver. तो bile के further breakdown से urochrome pigment बनते हैं. ठीक है. That is the one which gives the urine its येलो कलर. ठीक है. देन दूसरा कोई नॉर्मल डिपॉजिट्स रहेगा, सम क्रिस्टल्स और मे बी सम सेडिमेंट्स, दैट इज आल्सो फाउंड टू बी नॉर्मली एब्सेंट इन यूरिन. pH is around 6 which is normally acidic. A normal range can be from 4.6 to 8 depending upon other various factors. Okay.
देन अदर एबनॉर्मल पिगमेंट्स देखना, कंपोनेंट्स देखना यूरिन में क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर वेरियस कंडीशंस, ओके। एक होता है एल्ब्यूमिनूरिया, कि द यूरिन इज कंटेनिंग एल्ब्यूमिन पिगमेंट्स। एल्ब्यूमिन इज वन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। तो in any part of the nephron, whenever the any of the step of urine formation is abnormal, तब ये कंडीशन हो सकता है कि जैसे ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में ही फिल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं रहा एंड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन पास हो गया फिल्ट्रेट में, तो वो रीएब्सॉर्ब नहीं होता है, वो एल्ब्यूमिन और या एल्ब्यूमिन बन के यूरिन से निकल जाते हैं। ओके। सेकेंड है ग्लूकोसूरिया, यूरिन कंटेनिंग ग्लूकोज। ये हो सकता है डायबिटिक पीपल, because diabetes mellitus where the blood glucose concentration increases too much। तो इतना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज है कि बार बार रीएब्सॉर्ब करके उसको शरीर में नहीं रख सकते, दैट कैन बी टॉक्सिक। तो दैट टाइम द बॉडी अलाउस द डिस्चार्ज ऑफ द ग्लूकोज वाया यूरिन बिकॉज बहुत ज्यादा, दैट इज ग्लूकोसूरिया। इसलिए यूरिन टेस्ट करवाते हैं और उसमें ग्लूकोज डिटेक्ट हुआ तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। कीटोन्यूरिया करके होता है कि समटाइम्स डायबिटीज में या ऐसे कंडीशन में कीटोन बॉडीज मिलेगा यूरिन में एंड इट कैन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आल्सो। ओके, कीटोन्स के वजह से। तो कभी बहुत ज्यादा स्टारवेशन हो गया, खाए नहीं ठीक से, तो कीटोन्यूरिया हो सकता है। ओके। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं देन ऑल्सो इट कैन लीड टू कीटोन्यूरिया। ठीक है। देन बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स अगर डायरेक्टली यूरिन में आ गया वो भी एबनॉर्मल है, बिकॉज बहुत ज्यादा बाइल वगैरह डायरेक्टली यूरिन में नहीं आना चाहिए। तो एनीमिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस ऐसे कंडीशंस में, या सिरहोसिस होते हैं, अ पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ टेंडेंसी टू ड्रिंक, ड्रिंकिंग हैबिट है, तो ऐसे कंडीशंस में बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स आ सकते हैं। ओके। देन देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड हेमाटूरिया। हेमाटूरिया का मतलब है यूरिन में ब्लड directly। okay, तो red blood cells in the urine is normally due to any injury या inflammation in the urinary organs, कि किसी भी पोर्शन में कोई इंजुरी हो गया तो डायरेक्टली ब्लड सेल्स पास हो रहे हैं, आरबीसीज, तो दैट इज हेमाटूरिया। ओके। फिर आता है कास्ट। कास्ट का मतलब है स्मॉल सॉलिड masses of materials that come out in the urine। तो फिल्ट्रेट में कभी कभी सॉल्ट जैसा जमा हो जाता है वो यूरिन में निकलता है, उसको कास्ट बोलते हैं, यूरिन टेस्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट आता है ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट ब्लड का मतलब है द ब्लड विच इज हिडन, किसी एक कोने में ऐसा जमा हो गया, सर्कुलेशन में है ही नहीं, ऐसा अचानक से यूरिन में निकल के आ गया। ओके। तो समटाइम्स द फिजिकल फोर्सेस ऑफ द मैच्योरेशन समटाइम्स कैन थ्रू आउट दिस ब्लड, उसको ऑकल्ट ब्लड। तो ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल कंपोनेंट जो है यूरिन में होने का चांसेस है। So that is why whenever if a person is having any doubt कि some abnormality is being seen in the urine, okay, if once or twice it can be ignored up to some extent, but अगर बहुत ज्यादा हुआ तो it's always better to consult a specialist, get a urine test done, and कभी कभी अंदर मेटाबॉलिज्म ऐसा abnormal रहता है कि बाहर से symptoms नहीं पता चलेगा, we might feel completely normal, but damage ज्यादा हो गया तब पता चलेगा। It's always better to get a checkup done and see report आएगा उसमें वैसे पता चल ही जाएगा सब कुछ, and whatever required treatment is there can be given, right? So ultimately what we have seen today कि the process of urine formation in detail and the composition of urine, normal and abnormal components both. So it was a complete interplay of circulatory system, hormonal system, urinary system, and to some extent even the digestive system, right? अच्छी तरह समझा ये सब पार्ट, right? So major part and the main part of the lesson is done. Now next session में we will see all the remaining different types of excretion and their modes and their significance and everything. So we'll be done with the lesson, right? कैसा लगा? धमाकेदार? हाँ
है ना। बढ़िया, ये रिवाइज करते रहना तो याद रह जाएगा अच्छे से। ठीक है।